Hello students. In previous video we discussed some question that is based on logboard and motorboats. Now in this lecture we will solve some questions that is based on which boats get how much fish. It is given on your book on page number 9. Now see first question. In one trip, the logboat brings about 20 kg of fish, but other types of boats bring a bigger catch as given in the table. This is a table. Here given types of boats: logboat, long tail boat, motor boat, machine boat. Now in second, catch of fish in one trip means one trip in kg. Logboat 20 kg, long tail boat 600 kg in one trip, motor boat 800 kg in one trip, and machine boat 6000 kg in one trip. मीन्स जब लॉग बोट एक बार जब जाती है सी में तो एक ट्रिप में कितनी फिश लेके वो आती है. तो लॉग बोट 20 kg, लॉन्ग टेल बोट 600 kg, मोटर बोट 800 kg, मशीन बोट 6000 kg. नेक्स्ट, स्पीड गिवन, स्पीड ऑफ द बोट्स, हाउ फार इट गोज इन 1 hour. 1 hour में लॉग बोट कितनी दूर तक जाती है. लाइक 4 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 hour में वो किलोमीटर. लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर, and machine boat 22 kilometer per hour. Okay, this is the table. Now on the basis of this table, first part of question is here about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips. Here 7 trips means it is given in one trip log boat 20 kg लेके आती है, लॉन्ग टेल बोट 600 kg, मोटर बोट 800 kg, मशीन बोट 6000 kg. सो 7 ट्रिप्स में कितना लेके आएगी हमको ये कैलकुलेट यहाँ पे करना है. सो सी हाउ वी विल कैलकुलेट. नाउ टाइप्स ऑफ बोट written here: log boat, long tail boat, motor boat, machine boat. Okay, and catch of fish in one trip. एक ट्रिप में इतना इतना kg लेके आती है, 20 kg, 600, 800 and 6000 kg. Now we have to calculate catch of fish in 7 trips. 7 trips में हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइक 20 मल्टीप्लाई बाय 7. So 2 7 ja 14, 140 kg. Now second 600. So 600 multiplied by 7. 6 7 ja 42. So 4 2 0 0 4200 kg. Okay, motor boat 800. So 800 multiply 7. 8 7 ja 56. So 0 0 5600. Now machine boat 6000 into 7 and it is 42,000 kg. क्लियर. यहाँ पे हमको वन ट्रिप में जो बोट्स हैं वो कितना केजी फिश लेके आती हैं वो गिवन था और हमको कैलकुलेट क्या करना था 7 ट्रिप्स में. तो हम लोगों ने क्या किया, जो वन ट्रिप का था उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल गेट 7 trips in kg. Means log boat 140 kg, long tail boat 4200, motor boat 5600 kg, machine boat 42,000 kg. Now second part, B part, about how far can a motor boat go in 6 hours. Like here question asked कि catch of fish in 7 trips and here what asked, time
6 hours में, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट इन 6 hours. वी हैव टू कैलकुलेट, मीन्स 6 hours में कितना डिस्टेंस कवर करती है. टाइप्स ऑफ बोट्स गिवन. ओके, catch of fish is also given, but we didn't need here this catch of fish. We need only speed of the boat. So speed of the boat, how far it goes in 1 hour. 1 hour में log boat 4 किलोमीटर पर आवर जाती है. लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर जाती है. मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर. मशीन बोट 22 किलोमीटर पर आ जाती है. ओके, लाइक हेयर आई रिटन PER पर, और यहाँ पे मैंने इस टाइप से लगाया है. ये दोनों सही है. या तो आप ऐसे स्लैश करके लिख सकते हो और या तो PER पर भी लिख सकते हो. ये पर का आप सिंबल समझिए. ओके, सो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट इन 6 hours. देयर इज एन फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. D इक्वल्स टू S इंटू T. D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड एंड T फॉर टाइम. तो हमको कितने 6 hours में निकालना है. सो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ क्या करेंगे? स्पीड गिवन है. सो स्पीड क्या हमको गिवन है? स्पीड 4 किलोमीटर एंड टाइम हमको कितना दिया है? 6 hour दिया है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6. डिस्टेंस हमें इससे मिल जाएगा. कितना आएगा? 4 6 24. सो 24 किलोमीटर. नाउ सेकेंड, 12 किलोमीटर पर आवर long tail boat. So 12 into 6 hour means speed into time. Here speed into time. So 12 6 are 72 kilometer. Now third, motor boat 20 multiplied by 6. 2 6 are 12 or 120 kilometer. Now machine boat is 22 into 6, so it comes 132 kilometer. Okay, now again I explain. In previous question asked कि catch of fish in one trip. एक ट्रिप में कितना kg फिश लेके ये डिफरेंट टाइप्स के बोट्स आते हैं एंड हमको बताना था कि 7 ट्रिप्स में अब कितना लेके आएगी. 1 ट्रिप की वैल्यू हमको गिवन थी और 7 से हमने मल्टीप्लाई करके 7 ट्रिप्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया. यहाँ पे आपको पूछा गया था, स्पीड गिवन था और हमको डिस्टेंस बताना था. ओके, तो लॉग बोट आपका 4 किलोमीटर पर आवर दिया था. ओके, और 6 hours में, एक आवर में ये दिया था, हमें 6 hours का निकालना था. तो हम लोगों ने क्या किया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, नाउ सी थर्ड पार्ट. Third part is, if a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take? पीछे अभी आप लोगों ने देखा था कि लॉन्ग टेल बोट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. इट्स गिवन. सो टाइम टेकन बाय द लॉन्ग टेल बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हमें कैलकुलेट करना है. ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम. और टाइम के लिए फॉर्मूला हमारा होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस कितना दिया है हमको? 60 किलोमीटर एंड टाइम कितना दिया हुआ है हमें? 12 किलोमीटर पर आवर. सो 60 डिवाइडेड बाय 12 एंड इट विल कम 5 hours. ओके, कैसे आएगा? आप कट कर सकते हो. 12 1 जा एंड 12 5 जा, 12 1 जा एंड 12 5 जा. अभी आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा और टाइम का फॉर्मूला पढ़ा. एक बार मैं फिर से इसको क्लियरली आपको बता देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये आपका फॉर्मूला है. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेस और थिंग्स. ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. Speed is traveled speed per unit time. Okay, or you can calculate speed by speed equals to distance upon time. It's a formula of speed and it's a formula of time. And time you can say a period of minute, hours, days, etc. is called time. Okay, so यहाँ distance equals to speed upon into time.
ये हमारा फॉर्मूला है, इसी से ये दोनों फॉर्मूला बना है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए टाइम हमें निकालना है, सो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा और डिस्टेंस यहाँ है, तो ये हमारे यहाँ पे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड के लिए हमने क्या किया, स्पीड यहाँ पे है क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस और टाइम हमारे यहाँ पे आके क्या हुआ, डिवाइड हो गया। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं जो हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिखनी रहती हैं। इसको बोलते हैं SI यूनिट। SI यूनिट मीन्स आप बोल सकते हैं सिस्टम, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, लाइक डिस्टेंस हमें अगर कैलकुलेट करना है या स्पीड और टाइम, तो क्या हमारे जो यूनिट से पीछे हम लोग लिखते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आर, ये हमारी यूनिट्स होती हैं। तो एक इनका ऐसा यूनिट होता है, मैं स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस होता है इसकी हमारी होती है मीटर, एंड टाइम, टाइम का हमारा होता है सेकेंड। ओके, तो मीटर और सेकेंड जो है हमारा, ऊपर हमारा डिस्टेंस है और नीचे टाइम है, तो स्पीड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों हमारा डिवाइड हो जाएगा। सो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारा SI यूनिट जो है वो डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, एंड फॉर स्पीड दिस इज मीटर डिवाइडेड बाय एस। तो मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, पीछे मैंने ऐसे स्लैश लगाया था तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो PER पर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स मीटर पर सेकेंड को ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मीटर पर सेकेंड। जैसे मीटर को आप शॉर्ट में मीटर लिखते हैं एंड सेकेंड को सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हो। ये मीटर आपका किलोमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, सेकेंड आपका आर भी हो सकता है, ठीक है। अनदर यूनिट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।